Today we will start chapter 13, rectilinear figure. From M.L. अग्रवाल. कौन सी बुक में से? M.L. अग्रवाल में से बेटा. For class 9th ICSE. Exercise 13.1. कौन सी exercise? 13.1 from question number 8. As first 7 sums we have already done in last lecture. In figure first, figure given है बेटा. Here a figure. Given below, ABCD is a trapezium. Find the value of x and y. X and y missing है. यहाँ y है, ये x plus 20, x 2x plus 10. This is a trapezium now. A, B, C, D. यहाँ पे मुझे क्या एंगल लिखा है? 2x plus 10. Here x plus 20. Here y. And this angle is 92. This arrow symbol is there. Proof. AB parallel to CD. And a DA acts as transversal. DA acts as transversal. Excuse me, sir. Yes. So what is transversal? What is the meaning of transversal? When two lines are parallel and a third line intersect them. That line is called, the line which intersect those two lines are called transversal line. Okay, so this sir. parallel to this and this is a transversal. This is co-interior angles. A. Here A is x plus 20 plus D 2x plus 10 is equal to 180. X plus 2x 3x. 20 plus 10 30 is equal to 180. 3x 180 30 become minus 3x we get 150 and x we get 150 upon 3. But these two we get 50. X की value 50 आ गई. Fill that here. Now same way AB parallel to DC and CB acts as transversal. CB acts as transversal. So angle B plus C is also 180. That are co-interior angles. Lines are parallel and this is a transversal. Co-interior matlab interior angle on same side are supplementary. ये होता है बच्चे. B की value y, C की value 92 is 180 and y we get 180 minus 92. 10 minus 2 8, 17 minus 9 8. 88 is the आंसर. x की वैल्यू 50 आ गई और y की वैल्यू ये आ गई. ये बच्चे हमें फाइंड करना था. अंडरस्टूड? Yes, sir. Got it. ऋतुजा, यस सर. तेरी मम्मी को फोन मिलाऊं? सर क्यों? पूरे 2 मिनट लेट थी. सर हाँ बोलो.
मजाक कर रहा हूँ मॉर्निंग में तेरे साथ सुबह सुबह। आंखें खोल दूं तेरी? क्या सर? मैं तेरी आंखें खोल दूं? नहीं, उठ गई सर। उठ गई? चलो गुड। Here, ABCDs are isosceles trapezium. Isosceles trapezium in which non-parallel sides are equal. Non-parallel मतलब isosceles trapezium. Trapezium क्या होती है? In which one pair of opposite side is parallel. Here, AB and DC are parallel. Other sides are equal. Find the value of x and y. Same way. Same AB parallel to DC and AD act as transverse से लिख लोगे ना? तो एंगल ए, अब मैं सीधा लिख रहा हूं कि टाइम ना वेस्ट हो हमारा, क्योंकि सम्स काफी पेंडिंग है अभी। 180 को इंटीरियर एंगल्स। अब ए की प्लेस पे 2x, डी के प्लेस पे 3x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180 एंड x 180 अपॉन 5 3 6। x की वैल्यू आ गई 36। Therefore, angle A is equal to 2x is equal to 2 into 36. That is 72 degree. Angle D is 3x. 3 into 36. We get 108 degree. ये 72 आ गया बच्चे, ये एंगल D 108 आ गया। Yes, Rituja, how we can find y now? ऋतुजा? यस सर। सर हम लोग जो x की वैल्यूज नहीं सर 3x + 5 इज इक्वल्स टू 180। ये लाइन पैरेलल है इसके, ये इन दोनों का सम 180 होगा। नहीं। Now ABCDs are आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है? बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ए और बी आपस में इक्वल होंगे, डी एंड सी आपस में इक्वल होंगे। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ओए मोटी आ गई। डी इज इक्वल टू सी। डी एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 108 और सी की वैल्यू कितनी है? y। हो गया। इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और ट्रायंगल नहीं है, ट्रेपेजियम सॉरी, बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल मतलब ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, इसको बोलते हैं बेस एंगल्स। समझे? यस सर। आंखें खुली नहीं है अभी भी, को इंटीरियर बोल रही है डी और सी को, है ना? गुड मॉर्निंग जोया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मोटो, कितने बजे उठी थी? सर 6 बजे। 6 बजे उठी थी? तो 5 बजे उठती होती है। नो सर, अब तो ठंड है। फिर क्या हो गया? ठंडा तो बढ़िया है। सर सुबह इतना अंधेरा होता है। मेरा होता है। चलो इन फिगर, इस फिगर में बच्चे ये कंप्लीट एंगल 112 दिया हुआ है उन्होंने, ये कंप्लीट एंगल 64 दिया है। यहां देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है उन्होंने। इन फिगर थर्ड गिवन बिलो ABCD इज अ काइट। ABCD काइट है एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल DAB 112 एंड ये 64 ODC। ODC एक तो ये एंगल फाइंड करना है और दूसरा OBA ये वाला एंगल फाइंड करना है। We have to find this angle
एंड दिस एंगल जो मैंने मार्क कर दिए। क्या करेंगे इफ्रा, बताओ कैसे फाइंड करेंगे? यस सर। ABCD इज अ काइट, काइट गिवन है हमें। यस बच्चे बोलो। इफ्रा यस सर। नहीं आ रहा ना? नो सर। ये क्या है, मैंने क्या लिखा है? काइट सर ना? एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ये साइड इसके इक्वल, यस सर। ये साइड इसके इक्वल। यस और नो? यस सर। पहले कौन सा करना लिखा है इन्होंने? ओडीसी। इस ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल CDB, CD में आ गई। CD यस इज इक्वल टू CB। इफ्रा तो नहीं बोलना है अभी ये। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। सॉरी सर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट। टू डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके। सर। CD इक्वल टू CB, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। यस नेक्स्ट सर। मतलब एंगल CD के अपोजिट CBD एंड CB के अपोजिट CDB। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रेपेजियम। प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम कहां से आ रहा है सुबह सुबह? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। एंगल अपोजिट, देखो ये इक्वल साइड्स हैं ट्रायंगल की, तो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। लेट ईच बी x, लेट एंगल CBD is equal to CDB is equal to x. Now इन तीनों एंगल्स का सम सर एक मिनट अर्थात ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 degree. रीजन? So because the sum of all the A angle B angle C is 180 degree. ये तो लिख ही दिया। रीजन बता। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये रीजन है बच्चे। ओके। Yes sir. DCB 64, CDB x, DBC x 180, x plus x 2x 180 minus 64. What we get? 2x is 116 and x we get 116 upon 2, 58. x की वैल्यू कितनी आ गई? 58. Therefore ये वाला x एंगल या ये वाला ODC लिख सकता हूं x को, क्योंकि उन्होंने x नहीं पूछा था, उन्होंने ODC पूछा था। तो ODC is 58. This is आंसर। आंसर आ गया बेटा हमारे पास। Is it okay? आ गया समझ? Yes sir. नाउ सेम वे बच्चे, ये साइड इस ट्रायंगल में ADB में ये साइड इसके इक्वल है, इसके सामने ये वाला एंगल y और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तीनों का सम करके यू कैन फाइंड y। कर लोगे सेम मेथड से? यस सर। Yes, sir. आई एम नॉट डूइंग दिस। अन्वेषा, व्हाट इज द टाइम? हाँ 6:70। मैथ ज्यादा नहीं लग गया? ओ अन्वेषु, सॉरी। जी ये सोचो फिर मेरे करवाने का फायदा क्या है कि जब उठना ही नहीं है टाइम पे तो। फिर मेरे को क्यों उठाते हो, मेरी नींद क्यों खराब करते हो?
given ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. To prove each angle 90, मतलब एंगल ए जो प्रॉपर्टी है वही प्रूव करनी है. C is equal to D is equal to 90. This one we have to prove. Yes, अन्वेषा बता मुझे कैसे करेंगे फिर. Tell me fast. What we can do? बोल पढ़ कुछ तो अन्वेषा. यस सर, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना. रेक्टेंगल दिया हुआ है, ईच एंगल 90 प्रूव करना है हमने. तो सर हम लोग सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री करेंगे फिर. नहीं बच्चे, we know that rectangle is a special type of parallelogram in which one angle is 90. अब किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, एक एंगल 90 प्रूव करते थे ना, याद है? Yes, sir. यस सर. एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, जब वन एंगल 90 हो. तो वही लाइन लिख दी. लेट एंगल ए 90 ले लिया हमने, एक ना ले लिया 90, ए 90 ले लिया. नाउ एंगल ए प्लस बी 180. यस सर. रीजन को-इंटीरियर है. co-interior angles. A 90 plus B is equal to 180. एंगल B कितना आ गया, 180 minus 90, 90 आ जाएगा बच्चे. एंगल B भी 90 हो गया. Now एंगल A is equal to C and एंगल B is equal to एंगल D, क्योंकि पैरेललोग्राम है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. Is equal to 90 is equal to 90. Excuse me, sir. Yes. So in a rectangle, every time one angle will be 90 degree. Yes. All angles are of 90, but each angle is of 90. रेक्टेंगल का each angle 90 होता है. But उन्होंने हमें प्रूफ करने के लिए बोल दिया at that time. You know that rectangle is a special type of parallelogram in which one angle is 90. इसमें एक एंगल 90 होता है. वैसे तो हर एक एंगल 90 होता है, ईच एंगल. Okay, sir. Both pairs of opposite angles of parallelogram are equal. सर लेकिन हमें तो a प्लस बी इक्वल्स टू 180 प्रूफ करवा दिया और उसके बाद लिखा है कि सो a इक्वल्स टू b, सो एंगल a, एंगल b, एंगल c, एंगल d इक्वल्स टू 90 डिग्री. एक्चुअल में तो बच्चे ये ऐसे ही है, ठीक है. एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल है ये, तो उन्होंने ऐसे सॉल्व किया हुआ है. ओके, तो चलो उन्होंने अपना इजी वे कर दिया कि हाँ चारों एंगल इक्वल होते हैं, चारों का सम 360 हो गया. वैसे करना है वैसे कर लो, वैसे ये चीज होती है, ऐसे करना है बच्चे. 9th का फर्स्ट पार्ट. नाउ कोई बात नहीं, वैसे कर लेना, करना है तो वैसे कर लो. 9th का सेकंड पार्ट. If the angle of quadrilateral are equal, prove that it is a rectangle. अब रेक्टेंगल कौन सी रेक्टेंगल की मेन प्रॉपर्टी ईच एंगल 90 ना. अब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल इक्वल दिए हैं, इसमें करेंगे बच्चे वैसे जैसे तू बोल रही है अन्वेषा.
ओ अन्वेषा, सो जाती है ये? नहीं सर। झपकी आ गई, मुझे पता है। ये दिए हुए हैं चारों एंगल इक्वल। टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। Proof let angle A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to X degree. ये भी X, ये भी X, ये भी X, ये भी X. Now चारों का सम 360. 360. Reason angle sum property of quadrilateral. ABX, BBX, CBX and DBX इसके equal 360. 4x is equal to 360 and x we get 360 upon 4, 90. Therefore x किसको लेट किया था? चारों एंगल्स को. Therefore angle A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to 90. यहाँ पे एक लाइन लिख देना. We know that if each angle of a quadrilateral is 90, then it is also called rectangle. उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं. हो गया. Therefore यहाँ पे लिख देना ABCD is a rectangle. ऐसे करने बच्चे 9th का सेकंड पार्ट. 9th का थर्ड पार्ट. If the diagonal of rhombus are equal, rhombus के diagonals equal हो, prove that it is a square. स्क्वायर प्रूव करना है ना, तो स्क्वायर की शेप ही बना लो बस. बट दिस इज अ रोम्बस. गिवन क्या है हमें? रोम्बस. गिवन ABCD is a rhombus. In which diagonals are equal. AC and BD are equal. AC is equal to BD. To prove ABCD is a square. जोया, जोया, यस सर. एक रोम्बस बेटा स्क्वायर कब बनता है? यस सर. When, how a rhombus become a square? Yes, किया हुआ है बच्चे. क्वाड्रिलेटरल चैप्टर मतलब हमने बहुत प्रॉपर्टीज की थी, रट्टे मारे थे पूरे. यस ऋतु. दिवांशु, दिवांशु. यस सर. हाउ? सर जब उसके साथ हाँ हाँ बोलो. जब ऑल एंगल्स 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री के हो जाते हैं एंड डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं. डायगोनल तो इक्वल दिए हुए हैं, इसको स्क्वायर प्रूफ करना है. एक रोम्बस स्क्वायर कब बनता है? व्हेन वन एंगल इज ऑफ 90. देखो एक एंगल 90 करेंगे, चारों एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाते हैं. यस सर. चारों एंगल 90 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एंगल. तो इसके लिए क्या करना है बच्चे? ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करो. एक तो ये वाली, ये मैंने डबल कर दी, और दूसरी जो मैं डार्क कर रहा हूं, दिस वन.
in triangles DAB and CBA. DAB and CBA. जो है आप कॉन्ग्रुएंट तो करवा दे बच्चे मुझे ये ट्रायंगल्स. Yes, sir. ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट करनी है, DAB and CBA. How we can do it? DAB and CBA. Sir, AB equals sir, AB is equals to AB because same Yes. line है. Common. Common है ये. Sir, हाँ जी बच्चे. sir, in this rhombus, the middle will be in the middle. It will be O, na? We will put O. लो. Okay, okay, sir. वैसे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका यूज ही नहीं होगा उस पॉइंट का. Okay, sir. यस जोया बोलो Sir, बच्चे. Sir, AD is equals to BC. रीजन. Sir, all sides of rhombus are equal. Are parallel, sorry. इक्वल. Pa- इक्वल किया कि पैरेलल किया है यहाँ पे तूने? ये पैरेलल सिंबल है. Equal. इक्वल 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 मुझे एक बार में सुन जाता है. और तीसरा ये मैं बता देता हूँ. BD is equal to AC. Given. AC. AC is equal to BD या BD is equal to AC. That is a given. So triangle DAB is congruent to triangle CBA. By which rule? S rule. Triangles are congruent. तीनों साइड यूज हुई हैं बच्चे. कॉन्ग्रुएंसी रूल तो पता ही है सबको, है ना मोटो? मोटो. Sir, SSS. तो ये एंगल बच्चे इक्वल हो गई. एंगल DAB is equal to angle CBA. CPCT. This angle and this angle are equal. CPCT corresponding parts of congruent triangles. समझे? Yes, sir. अब बट ये दोनों एंगल कौन से हैं जो जोया? जोया Yes, sir. A और B एंगल कौन से हैं? Sir, 1 and 2. हैं? Sir, कौन से हैं? हाँ. Sir, co-interior. Sorry. Co-interior. मुझे ना सारे क्वेश्चन तेरे से ना पूछने शुरू कर दूं मैं, देख ले. Sir, क्यों? मैंने क्या किया? क्या है सर? मैंने क्या किया? क्या है? तूने कुछ नहीं किया, फिर करना शुरू कर देगी ना. वही कह रहा हूँ, तू कुछ करती नहीं है. करती तो हूँ मैथ. मैथ करनी थी, उतना नहीं करती ना जितना चाहिए. देख धीरे धीरे तेरे को पता चलता है कि हाँ ये को इंटीरियर है, ठीक है, ये साइड्स इक्वल है. वो चीज एग्जैक्ट आनी चाहिए. ये चीज बच्चे हमने प्रूव की है. सिंस प्रूव्ड अबव. तो मैंने क्या किया बच्चे, देखो दोनों का सम 180 था. को इंटीरियर एंगल्स, DAB को DAB रखा, CBA ये वाला एंगल DAB के इक्वल इज इक्वल टू 180. DAB प्लस DAB, टू एंगल DAB is equal to 180. Angle DAB is equal to 180 upon 2. 2 जो मल्टीप्लाई था वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया. कट किया, we get 90. तो एंगल DAB क्या आ गया? 90 आ गया बेटा. इसके बाद एक लाइन लिखनी है. We know that if one angle of a rhombus is 90 then it is also called square. यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ. We know that if one angle of a rhombus is 90, then it is also called
square. Therefore ABCD is a square. समझ आ गया? फिर से देखो क्या किया, हमें सिर्फ रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल दिए हुए थे, हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दी इससे एसएसएस रूल से। ये साइड इसके इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस, ये डायगोनल इसके इक्वल, डायगोनल के दूसरे के गिवन है हमें ए बी कॉमन। एसएसएस रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा सीपीसीटी, बट दोनों एंगल्स क्या है, कोइंटीरियर है, दोनों का सम 180। रोम्बस गिवन थी ना, लाइन तो पैरेलल है ही ऑलरेडी 180। एंगल डीएबी एज लाइक सीबीए को बच्चे डीएबी लिख दिया, डीएबी प्लस डीएबी 2 एंगल डीएबी 180, 2 नीचे चला गया, कट किया, 90 आ गया, एंगल डीएबी बिकम्स 90। अब रोम्बस का एक एंगल 90 हो तो क्या बन जाता है बच्चे, वो स्क्वायर बन जाता है। ये लाइन ऐसे लिखनी है प्रॉपर, you know that if one angle of a rhombus is 90 then it is also called a square. Therefore ABCD is a square. Understood? Yes, sir. Now fourth sum, एक्चुअल में हमने आज 7 सम्स करनी है बट है 2 ही, 8 and 9. Prove that every diagonal of a rhombus bisects the angle at the vertices. ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमने। प्रूव दैट एवरी डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, इफ्रा दो इफ्रा कैसे हो गई, एक उड़ गई। हाँ इफ्रा, यस सर। क्या हो गया था? सर पता नहीं, डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। तू ज्वाइंट थी, अभी डिस्कनेक्ट हुई है दूसरे से। सर अचानक से स्क्रीन हट गया था। अच्छा कोई बात। वाईफाई लगा हुआ है कि सिर्फ मोबाइल डाटा पे यूज कर रही है? सर अभी तो मोबाइल डाटा से करती हूँ, पर रात में दूसरे वाले फोन से। मोबाइल डाटा ही होता है वो भी? हाँ सर, पर वो उतना जल्दी नहीं खत्म होता है। क्यों? सर पता नहीं पापा ने कौन सा सिम लगवाया है। अच्छा, वैसे तो ना वाईफाई लगवा ही लो क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी जरूरत पड़ेगी। यस सर। Prove that every diagonal of a rhombus bisects the angle at the vertices. Every diagonal of rhombus. Diagonal of rhombus bisects the angle. मतलब ये एंगल इसके इक्वल करने हैं, रोम्बस बनानी थी यार, पैरेललोग्राम बना दी। चलो रोम्बस लेके चलेंगे, मान लेते हैं ये रोम्बस ही है। ABCD is a rhombus. To prove bisects the angle, एंगल 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना है, 3 को 4 के इक्वल प्रूव करना है कि वर्सेस पे जो है एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। 1 को 2 के इक्वल, 3 को 4 के इक्वल। मुस्कान, व्हाट वी कैन डू? मुस्की, मुस्कान देखा है नहीं वो? यस सर। है इतना Yes, लेट sir. रिस्पॉन्स बच्चे में सर क्या सुनाई नहीं दिया? कुछ नहीं सर। ये साइड इसके इक्वल, बोलो। यस सर। क्यों? वाई? सर क्योंकि दिया है। क्या दिया है? ADDC के इक्वल दिया है? मुझे तो दिख नहीं रहा यहाँ पे। सर मैं, नहीं एक मिनट, मुस्कान से पूछना है। क्योंकि सर ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। हाँ ऑल साइड्स ऑफ, ये रीजन आएगा यहाँ पे।
आर इक्वल। तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल 3 1 के इक्वल हो जाएगा। यस मुस्कान, वाई वाई रीजन? सर क्योंकि डायगोनल का सेक्टर चले आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी बच्चे मैंने देख सारा कुछ तो मेंशन कर दिया। इन ट्रायंगल एसीडी एडी इज इक्वल टू डीसी, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसके सामने ये वाला एंगल 3 है, इसके सामने अपोजिट एंगल 1 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, so is equal to 1। बट एंगल 3 किसके इक्वल है मुस्कान? 3 is also equal to 3 is equal to सर एंगल 4। एंगल 4 के इक्वल है, वो तो प्रूव करना है। सर एंगल 2 होगा। एंगल 2 होगा, मुझे साथ ले जाना एग्जाम में। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैं बता दूंगा वहां पे आके, ठीक है। सर ये 3 1 कैसे मुश्किल है? मुश्किल क्या है? 3 1 के इक्वल बट 3 आल्सो इक्वल टू 2 ना। तेरे को हिंट में सारे दे रहा हूं कि 3 आल्सो इक्वल टू, वो तूने देखना है अभी। Therefore 1 is equal to 2, 1 2 के इक्वल आ गया। नाउ वन एंगल और किसके इक्वल है बच्चे? सर मुस्कान, एंगल एंगल 4। एंड एंगल 2 किसके इक्वल है? सर एंगल 3। सेम अल्टरनेट, इंटीरियर एंगल। बट 1 और 2 क्या किए हैं हमने? इक्वल प्रूफ किए हैं। यस सर। देखो 1 2 के इक्वल, तो 4 किसके इक्वल होगा? 3 के। एंगल 3। ये दो प्रूफ करने थे, एक तो ये प्रूफ करना था, एक ये प्रूफ करना था। सर हाँ जी, सर हम कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते थे ना? कांग्रेंसी से। सर दो साइड्स हाँ इक्वल जी, है, हाँ जी, एक हाँ जी बेटा, गिवन हो है। जाएगा, ये हो जाएगा। बट इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल और ये कॉमन, तभी ये 1 2 हाँ के सर, इक्वल और 3 हो। ठीक है। एसएसएस। हाँ जी बच्चे। नाउ द 10th सम। टाइम क्या हुआ है? 6:40 हुए हैं, पढ़े हैं अभी तो। ABCD is a parallelogram. If the diagonal AC bisect angle A, then prove that AC bisect angle C. ABCD is a rhombus. AC perpendicular to BD. ABCD is a parallelogram. Given in parallelogram ABCD, AC bisect angle A 1 2 के इक्वल है। Prove that AC bisect angle C 3 को 4 के इक्वल प्रूव करना है। मैंने डॉट लगा दिया निशानी, ये दिया नहीं हुआ, प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या करना है? AC bisect angle C 3 is equal to 4. Second part, ABCD is a rhombus. And third, AC perpendicular to BD. Proof. हाँ जी। कैथरीन करवाओगे बच्चे मुझे? कैथरीन
Yes, sir. How we can prove 3 is equal to 4? बोलो बच्चे. No idea. ये किया है ना इतना पार्ट. Yes, sir. सेम. Yes, 1 sir. 2 के इक्वल दिया हुआ है. पहले हमने प्रूव किया था लास्ट सम में. इसमें गिवन है. इसमें क्या Yes. है? गिवन. तो 1 2 के इक्वल मतलब सॉरी पहले तो 1 किसके इक्वल? 4 के. So 4. Why? Sir, alternate interior angles. 2 is equal to 3 3. Alternate interior angles. आज तो नहीं मम्मी ने धक्के से उठा दिया. No, sir. हम अपने से. अपने आप उठे. फिर तो सियानी हो गई. But angle 1 is equal to angle 2. This is given. Yes, sir. वो आदत पड़ जाएगी. 2-4 दिन ना मुश्किल लगता है. उसके बाद अपने आप उठने लग जाओगे. Yes, sir. 5:35 मतलब 6 o'clock से पहले पहले अपने आप मतलब नींद खुल जाया करेगी. Yes. Yes, sir. 1 2 के इक्वल. तो therefore 4 is equal to 3 बच्चे. Yes, sir. देखो 1 4 के इक्वल ऑल्टरनेट. 2 3 के इक्वल ऑल्टरनेट. बट 1 and 2 आर इक्वल गिवन. तो therefore 4 is equal to 3. Equals to 3. पहला पार्ट हो गया. Yes, sir. Now first part is completed. We have to prove ABCD is a rhombus. ABCD को rhombus प्रूव करना है. तो उसके लिए 1 2 के इक्वल बट 2 is equal to 3. ऑल्टरनेट ये गिवन है हमें. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो therefore 1 3 के इक्वल आ जाएगा बच्चे. yes or no? Yes, sir. Yes. तो ऋतुजा अब क्या करें? क्या सुनाई नहीं दे रहा? सर लेकिन हमने ये निकाला. 1 and 3 कौन सी ट्रायंगल के एंगल है? इतने. सर DAC. इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता मैं. सर DAC के. तो उसके बाद So DA will be equal to DC, converse of isosceles triangle property. Therefore, ABCD is हो गया रोम्बस. मतलब एक लाइन लिखनी है. देखो ये साइड इसके इक्वल होगी. पैरेललोग्राम है ना ये. पैरेललोग्राम का 1 पेयर और एडजेसेंट साइड्स का इक्वल हो तो क्या होता है वो? रोम्बस. यहाँ पे प्रॉपर लाइन लिख के वी नो दैट if 1 pair of adjacent sides of a parallelogram is equal. Adjacent sides of a parallelogram is equal. Only parallelogram, not quadrilateral. Parallelogram is equal, then it is also called rhombus. Therefore, ABCD is a rhombus. Second part हो गया. AC परपेंडिकुलर टू BD मतलब इन चारों में से कोई एक एंगल 90 करना है. हाउ वी कैन प्रूव इट? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दोगे. ये साइड इसके इक्वल. ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल. ये साइड कॉमन. 1 3 के इक्वल हमने प्रूव किया है. yes sir. तो ये तो रूल नहीं बन रहा कोई. AOD triangle AOD will be equal to angle COD. नहीं हाँ ये मत लो. ये ले लो. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये तो ले ही सकते हैं ना. यूज कर सकते हैं. एस 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 से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. तो 4 तक एंगल ले चुके हैं. इसको 5 ले लें. इसको 6 ले लें. 5 और 6 इक्वल आ जाएंगे CPCD से. यार सारे सुस्त हो. Yes, sir. हाँ sir. तो दोनों का सम 180 लीनियर पेयर. Yes, sir. Yes
5 plus 5 180, But they 5 are angle 90. equal. They are equal. 5 plus 5 तभी बोला है बच्चे, 6 को 5 लिख देंगे. Yes, sir. 5 Two is equal to angle 9, 5 is equal to 180 180. and 5 कितना आ Angle जाएगा? 5 is equal to 90. तो AC क्या हो जाएगा? BD पे परपेंडिकुलर. Yes. कर लोगे? Yes, sir. ये थोड़ा सा हिंट लिख दूं यहाँ पे लिख देता हूँ. इसके बाद AOD को कॉन्ग्रुएंट करना है COD के, तो एंगल 5 6 के इक्वल आ जाएगा CPCT से. बट 5 plus 6 किसके इक्वल? 180 के. 5 plus 5 is equal to 180. 2 angle 5 is equal to 180 and angle 5 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा. तो therefore AC perpendicular to BD. यही प्रूव करना था बच्चे हमने 4th पार्ट में. समझे? 3rd पार्ट में, सॉरी. Yes, sir. Yes, sir. एनफ है बच्चे आज के लिए. अभी 50 हुए हैं तो फिर नेक्स्ट सम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल ही करेंगे फिर. ठीक है? Okay, sir. ओके बाय. Okay, sir. Sir, इसका PDF भेज देना. हाँ भेज देता हूँ बच्चे मैं. Thank you, sir. Good day. Good day, Thank you, sir. sir. Bye, Thank sir. you, sir.